नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं, बल्कि जनता की सक्रिय सहभागिता से चलने वाली पद्धति है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक कितने जागरूक, सक्रिय और जिम्मेदार हैं। भारत जैसे सबसे युवा आबादी वाले देश में, जहां 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, वहां लोकतंत्र के वर्तमान और भविष्य दोनों का दायित्व युवाओं के कंधों पर है। लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका केवल मतदाता तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण, नवाचार, गवर्नेंस और सामाजिक परिवर्तन के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी अनिवार्य है। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे भारत के युवाओं और युवा संसद की भूमिका पर। युवा वर्ग किसी भी समाज की सबसे ऊर्जावान, सृजनशील और परिवर्तनकारी शक्ति होता है। लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो न केवल वर्तमान समस्याओं को समझने की क्षमता रखते हैं, बल्कि भविष्य के लिए नए समाधान भी प्रस्तुत कर सकते हैं। युवाओं में जोखिम उठाने का साहस, नए विचारों को अपनाने की प्रवृत्ति और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का जज्बा होता है। जब जब दहला विश्व हमारा और जब जब बेमकसद खून बहा, चीन, रूस, जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। It was the value of forgiveness that even after the British sent our soldiers to world wars and our farmers to famines, Mahatma Gandhi still chose ahimsa and satyagraha for independence. Taking inspiration from India, Nelson Mandela also chose to forgive the apartheid regime in South Africa. हमें युद्ध के खिलाफ एक वास्तविक युद्ध की जरूरत है. And that's why all of us need to unite for one single cause, our planet Earth. Ladies and gentlemen, today is time that we focus on equitable distribution of income, green GDP, sustainable development, and when the youth of this nation, rather than feeling proud about Sundar Pichai being the CEO of Google and Satya Nadella leading Apple, will build our own Google, our own Facebook in this nation, that day will become technologically sustainable. But ladies and gentlemen, all these three avenues are incomplete without a political structure that's unsustainable. That is why I believe that today, along with National Youth Parliament, we also need youth in the parliament to provide educational avenues and even innovative policies for our youth. I believe that today, as we have an Indian administrative services for our bureaucracy, we need to have an Indian political service for our politicians so that they can be sustained and engrossed with policy making, and good policies can be converted and transferred from one government to another, irrespective of their political policies. But, and I say this but in capital letters, ladies and gentlemen, irrespective of what society, culture, ecology we have, if our youth does not have the educational wisdom to use this potential, we cannot lead to a sustainable future. Now, when we talk about peace-abiding remedies, remedies are effective only when it is comprehensive in nature. From the Indus Valley civilization to the reign of Chandragupta Maurya to the dawn of Mughal era, from the Kathak of Uttar Pradesh to the Garba of Gujarat to the Bharatnatyam of Tamil Nadu to the Rikhampada of Arunachal Pradesh, diversity has always been our identity. बोया बीज बबुल का तो फल कहाँ से पाएंगे? युद्ध भूमि में गए हैं तो शांति कहाँ से लाएंगे? यदि हम इन शक्तियों को भारत के संदर्भ में जोड़कर देखें तो हम निसंदेह कह सकते हैं कि हमारा भारत उन्नति के पथ पर है, क्योंकि भारत ने सदैव ही
शांति और जन कल्याण के बारे में सोचा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और यह प्रमाण है उस परिणाम का जब आज संपूर्ण विश्व एक कुशल नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता में भारत के खिलते हुए कमल को प्रणाम कर रहा है। और यही कारण है कि निसंदेह रूप से आज का मेरा विषय G20 में भारत की अध्यक्षता है। मतदान लोकतंत्र का मूल आधार है। जागरूक युवा मतदाता न केवल अपने अधिकार का प्रयोग करता है, बल्कि सही उम्मीदवार और नीतियों का चयन कर लोकतंत्र को दिशा देता है। युवा एक सक्रिय नागरिक के रूप में सामाजिक मुद्दों पर संवाद, जनहित याचिकाएं, जन आंदोलनों में भागीदारी करता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। इंडिया इज ऑलरेडी अ कनेक्टेड नेशन। Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. The only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter-India. How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. पंचायत से लेकर संसद तक युवाओं की उपस्थिति लोकतंत्र को नई ऊर्जा देती हैं। सिविल सेवा, पॉलिसी मेकिंग, थिंक टैंक और प्रशासनिक सुधारों में भी युवाओं की अहम भूमिका है। जीतने की राह आसान नहीं होती, जीतने की राह आसान नहीं होती, कहीं अंगारों से गुजरती है, कहीं रातों को तपती है, तब जाकर किसी को सफलता मिलती है। भूख, महंगाई और गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी। एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पर मर रही थी। सरकार प्याज, टमाटर और अदरक की मूल वृद्धि को रोकने के लिए क्या विचार कर रही है? टमाटर, प्याज और अदरक के मूल्यों में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है। सरकार इनकी कीमतों पर नियंत्रण के लिए कई प्रकार के उपाय भी कर रही है। जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। राष्ट्रीय युवा संसद योजना संसदीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये योजना देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन करती है, ताकि युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय प्रक्रियाओं की समझ विकसित की जा सके। इस योजना का उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है। अनुशासन, दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णुता और स्वस्थ वाद विवाद की आदतें डालना है। छात्र समुदाय को संसदीय संस्थानों के कामकाज के बारे में जागरूक करना, सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय बनाने और वक्तव्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, नेतृत्व के गुणों का विकास करना और सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने फरवरी 2019 में शुरू किए गए अपने युवा संसद कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म पर ट्यूटोरियल, साहित्य, प्रशिक्षण वीडियो जैसी कई ई प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध हैं, जो प्रतिभागियों को स्व अध्ययन में सहायता प्रदान करती हैं। ये मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस वेब पोर्टल का नया संस्करण
NYPS 2.0 भी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को व्यापक बनाना है। NYPS 2.0 के प्रमुख उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, अनुशासन और विविध विचारों के प्रति सहिष्णुता पैदा करना, छात्र समुदाय और सरकार के कामकाज और संवैधानिक मूल्यों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने में सक्षम बनाना और लोकतांत्रिक तरीके से जीवन जीने की भावना को बढ़ावा देना है। साथियों, कुछ महीने पहले मैं अपने निवास पर कुछ युवा खिलाड़ियों से मिला था, तो एक खिलाड़ी ने खड़े होकर के कहा कि मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे, लेकिन हमारे लिए तो पीएम का मतलब है परम मित्र। साथियों, मेरे लिए मेरे देश के नौजवानों के साथ मित्रता का वो ही नाता है, वो ही रिश्ता है। और मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। मुझे भी आप पर बहुत विश्वास है। इसी विश्वास ने मुझे मेरा युवा भारत यानी माय भारत के गठन की प्रेरणा दी। इसी विश्वास ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आधार बनाया। मेरा यह विश्वास कहता है, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। NYPS 2.0 का दायरा मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों से आगे बढ़कर सभी नागरिकों को आर्थिक स्थिति, लिंग, जाति, पंथ, धर्म, नस्ल या क्षेत्र की परवाह किए बिना भाग लेने की अनुमति देता है। युवा संसद NYPS में युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। 2019-20 में युवा संसद की बैठकों के लिए पंजीकरण संख्या 4,369 थी। 2020-21 में 3,579 और कोरोना महामारी के कारण 2021-22 में केवल 65 रही। 2022-23 में भागीदारी बढ़कर 2,337, 2023-24 में 1,346 हो गई। 17 मार्च 2025 तक 2024-25 की अवधि के लिए पहले ही 7,261 पंजीकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जो इस संशोधित योजना में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन मुख्य रूप से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो एक संबंधित लेकिन अलग पहल है, जिसमें 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के युवा भाग लेते हैं। इसके साथ ही विकसित भारत युवा संसद पारंपरिक युवा संसद से अलग है, जिसका उद्देश्य गतिशील, समाधान उन्मुख और नीति जागरूक युवा नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करना है। विकसित भारत युवा संसद का आयोजन 3 स्तरों जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। 2025 में जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला केंद्रों में आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम 17 राज्य विधानसभाओं में और शेष 18 राज्यों में अन्य सरकारी संस्थानों में आयोजित किए गए। विकसित भारत युवा संसद राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहले केवल राज्य स्तरीय विजेताओं को ही अपने विचार साझा करने का अवसर मिलता था, लेकिन 2025 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शीर्ष 3 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और इस तरह 105 युवा उच्च स्तरीय चर्चाओं और गतिविधियों में शामिल हुए। इस बार विकसित भारत युवा संसद का केंद्र बिंदु एक राष्ट्र एक चुनाव था।
जो युवाओं को संसद के माध्यम से संसद के कार्य करने के दृष्टिकोण और लक्ष्य से अवगत कराता है, जिससे वो विकसित भारत 2047 के व्यापक मिशन के लिए तैयार हो सकें। सत्रों में भाग लेने से ये युवा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण और लक्ष्यों को करीब से समझ पाते हैं। With one nation, one election, regional workers, young workers will get opportunity. Unity in diversity needs to be aligned with the idea of one nation, one election. One nation, one election is likely to brook well with the spirit of constitution. So I ask to the House, should one nation, one election refer to the Joint Parliamentary Committee for further deliberation? Those in favor of the motion say A. विकसित भारत युवा संसद पहल के तहत 2025 में जिला स्तर पर 29,145, राज्य स्तर पर 2,830 और राष्ट्रीय स्तर पर 105 विषयों का चयन किया गया। ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने और विकसित भारत एट 2047 के समग्र दृष्टिकोण में योगदान देने के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। मैं सुजल अग्रवाल, जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, लगता है हमारे विपक्षी साथी अपने ही बनाए जहान में मशरूफ हुए बैठे हैं। उनका अब इस सदन की कार्यवाही में ध्यान नहीं लगता, क्योंकि उनके इस प्रश्न का उत्तर मैं सदन में पहले ही दे चुका हूं। लेकिन फिर भी चलिए इनकी सहूलियत के लिए मैं सदन में पुनः एक बार दोहराता हूं कि हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने शिक्षा को अपनी सर्वाधिक प्राथमिकताओं में से एक माना है तथा इसके बजट में हम निरंतर वृद्धि करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 टू मिस श्रुति माकड़े। अगर ना हो किसान तो खेतों में कौन फसल उगाएगा? अगर ना हो किसान तो खेतों में कौन फसल उगाएगा? फिर सोचो कैसे बिना किसानों के भारत देश महान कहलाएगा, भारत देश महान कहलाएगा। क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों का आदर्श प्रतिशत कम से कम 33% होना चाहिए? हालांकि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार यह केवल 25% भूमि को ही कवर करता। तो वनों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मंत्री महोदया ने क्या उपाय निकाला? ऐसे कार्यक्रमों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए युवा प्रतिभागी विविध भाषाई, सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से होते हैं, जो अपने साथ विचारों, अनुभवों और अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला लेकर आते हैं। विकसित भारत युवा संसद के माध्यम से प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने, नीति निर्माताओं के साथ बातचीत करने और भारत की विकास यात्रा में सार्थक योगदान देने के लिए एक औपचारिक मंच मिलता है। आपने शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव, विचार, नवाचार को साझा किया। ये आपके अनुभव, विचार, ये नवाचार आपको नई प्रेरणा देंगे, नई ऊर्जा देंगे, नई दिशा देंगे। मुझे आशा है आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर जब जाएंगे, नए दृष्टिकोण से, नए विचार से, नई ऊर्जा से, नए नवाचार से और अनुभव का लाभ उस क्षेत्र की जनता को मिलेगा। आज का युग नवाचार और प्रौद्योगिकी का युग है और इस क्षेत्र में युवा सबसे आगे हैं। स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई गवर्नेंस और सोशल इनोवेशन में युवाओं ने लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने यह सिद्ध किया है कि नवाचार लोकतांत्रिक शासन को सशक्त बना सकता है। मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणालियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से युवा सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के युवाओं को संसद के बीच की दूरी कम करने के लिए अपनी संसद को जाने पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य आम जनता, विशेषकर युवाओं और छात्रों को भारतीय संविधान और संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करना है। इसका उद्देश्य लोगों को भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली, संसद की भूमिका, संवैधानिक मूल्यों और विधायी प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्रदान करना है, ताकि नागरिक जुड़ाव और जागरूकता बढ़ सके। इस पहल के तहत संसद भवन परिसर में विभिन्न समूहों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। भारतीय संसद में तकनीक के स्तर पर भी लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। इनमें डिजिटल संसद परियोजना 2.0 और संसद भाषणी पहल शामिल है, जो संसदीय कार्रवाई और दस्तावेजों को डिजिटाइज करती है और उन्हें 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराती है। देश की जनता तक इसकी पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। इसका लक्ष्य ग्राम पंचायतों से लेकर राज्य विधानसभाओं तक के निर्वाचित प्रतिनिधियों और छात्रों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ना है, ताकि संस्थानों को संवाद और उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जा सके। कुल मिलाकर ये नवाचार संसद को अधिक पारदर्शी, सुलभ और समावेशी बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। लोकतंत्र केवल राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और समावेशन भी उसका अभिन्न अंग है। महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की पहलें लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यवहार में उतारती हैं। जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और सामाजिक समरसता जैसे वैश्विक मुद्दों पर युवा नेतृत्व लोकतंत्र को वैश्विक दृष्टि प्रदान करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो एक मजबूत चट्टान सा है, एकदम नए हिंदुस्तान सा है। दोस्तों, भारत को एक नया भारत, एक सबल भारत, एक आर्थिक संप्रभुता संपन्न भारत और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान की प्रस्तावना है वोकल फॉर लोकल। To produce solar and wind energy, which will foster the national electric mobility plan. With regard to health sector, our pharmaceutical industry has produced an indigenous vaccine for battling COVID-19. We must achieve a Swadeshi economy. लोकतंत्र की सफलता और निरंतरता युवाओं की सक्रिय, जागरूक और जिम्मेदार भागीदारी पर निर्भर करती है। युवा संसद के आयोजन, नवाचार की संस्कृति और गवर्नेंस में युवाओं की सहभागिता लोकतंत्र को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान कर रही है। यदि युवा अपनी शक्ति, सोच और तकनीक का उपयोग राष्ट्रहित में करें तो लोकतंत्र न केवल मजबूत होगा, बल्कि अधिक समावेशी, पारदर्शी और उत्तरदायी भी बनेगा। युवा ही लोकतंत्र के संवाहक हैं और उनका सशक्तिकरण ही सशक्त लोकतंत्र की गारंटी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।